حجاز مقدس اس روئے زمین پر مقدس ترین سرزمین ہے۔ مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے۔ عبادت کا رخ اگر مکہ ہے تو محبت کا رخ مدینہ ہے۔ حرمین سے ہمارا رشتہ جسم کا بھی ہے اور روح کا بھی۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ شمال مشرق میں اس کی سرحد اردن اور شمال میں عراق، مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے۔ یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات موجود ہیں جن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی سردار محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت، اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ اگلے 150 سال میں آل سعود کی سخت محنت ایسے ابھر کر غروب اور طلوع ہوتی رہی، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے مصر اور سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم بھی ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبد العزیز سعود کی ہاتھوں میں معنی ہے۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبد العزیز ابن سعود کی اولاد کی حکمرانی میں قرآن ملک کا آئین اور شریعت اس کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی کئی اسلامی سزائیں نافذ ہیں۔ ملک میں کوئی بھی تسلیم شدہ سیاسی جماعت اور نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ سعودی عرب دنیا بھر میں مساجد، قرآن اور اسلامی سینٹر کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتا ہے۔ قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لائی جاتی ہے جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتا ہے۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہوتی ہے، جن کے قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ سعودی بادشاہ خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن سننے کے لیے حرم شریف اور مسجد نبوی میں ملتا ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا ملک بنتا ہے، اور سعودی عرب میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جس کی بلندی تقریباً 3280 فٹ ہوگی، یعنی 1 کلومیٹر۔ برج خلیفہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی بلند ترین عمارت ہے جس کی بلندی 600 فٹ ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کے سب سے خطرناک ڈرائیونگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں لوگوں کی اموات ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں بھی سعودی عرب میں ہی آپ کو چلتی پھرتی نظر آئیں گی، جن میں GMC، لیمبورگینی، لیموزین وغیرہ وغیرہ۔ ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے لیے تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے، جہیز کا کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے۔ شادی کے بعد لڑکی لڑکا الگ گھر میں رہتے ہیں۔ 2 یا 3 شادیاں کرنا عام رواج ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن غیر ملکی خیالات کو نہیں۔ پورے علاقے میں حقیقی تبدیلیاں پچھلے 50 سال کے اندر آئی ہیں، جب تیل سے ملنے والی آمدنی سے یہاں کے لوگوں کی قسمت بدلنے لگی۔ سعودی عرب پاکستان کا سب سے بہترین دوست ملک ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ پاکستانی ہر سال سعودی عرب سے
1200 अरब रुपए भेजते हैं, जो पूरी दुनिया में भेजे जाने वाली रकम से बहुत ज़्यादा है, जिससे पाकिस्तान के 28 लाख ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। और पाकिस्तान का शायद ही कोई ख़ानदान ऐसा हो कि जिसका कोई भी अजीज़ सऊदी अरब में ना हो। आप सऊदी अरब को पाकिस्तान का दूसरा घर कह सकते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में 1,08,04,192 गैर मुल्की काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 28 लाख पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं और 20 लाख भारतीय, जिनमें 22 लाख मिस्री और दिगर ममालिक के लोग वहाँ काम करते हैं। सऊदी अरब के बानी अब्दुल बिन सऊद की 22 बीवियाँ थीं। इनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बच्चे पैदा हुए और शाही ख़ानदान के शहजादों की तादाद 7,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। सऊदी अरब में कुर्बानी के 2 सिस्टम हैं। पहला सिस्टम, लोग मंडी जाते हैं, कुर्बानी का जानवर पसंद करते हैं और वहाँ से सुडानी बकरे या फिर ऑस्ट्रेलियन या फिर न्यूजीलैंड के बकरे खरीदते हैं और गुरबा ऊँट में हिस्सा डालते हैं। हुकूमत ने मुल्क के तमाम शहरों में जदीद स्लाटर हाउस बना रखे हैं। पूरे सऊदी अरब में स्लाटर हाउस के नर्ख तयशुदा हैं, जो कि 20 रियाल लेते हैं और आधे घंटे में ऊँट की ये बकरे की सफाई सुथराई करके बोटियां करके आपके हवाले कर देते हैं। स्लाटर हाउस की सफाई मसाली होती है। दूसरा सिस्टम, सऊदी अरब ने इस्लामी बैंक के मिलकर कुर्बानी की ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। इस ऑनलाइन सर्विस में आपको दुम्बे, बकरे और बहुत से जानवर मिलेंगे जो कि कुर्बानी के लिए लागू हैं। आप वहां पर 100 अमेरिकी डॉलर से 92 यूरो या फिर 450 रियाल या फिर आप ऐसा कह लें कि 14,000 पाकिस्तानी रुपयों में जानवर खरीद सकते हैं। ये जानवर मुख्तलिफ स्लाटर हाउस में मौजूद होते हैं और वहां से ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दी जाते हैं। ये सर्विस 2009 में शुरू हुई और अब तक 1,96,50,000 जानवर कुर्बान कर चुके हैं। पिछले साल भी इस सर्विस के ज़रिए 7.5 लाख जानवरों की कुर्बानी हुई। मैं यहाँ दुबई की मिसाल भी दूंगा। दुबई हुकूमत ने अलमवेशी के नाम से एक मोबाइल ऐप बना रखी है। दुबई के हज़ारों लोग इस ऐप से जानवर पसंद करते हैं, रकम अदा करते हैं और वहाँ जो हुकूमत स्लाटर हाउस में बनाकर इनकी कुर्बानी कर दी जाती है। दुबई हुकूमत आवाम को घरों में कुर्बानी की इजाज़त नहीं देती। दुबई का कोई भी कसाब अगर घर के अंदर जानवर ज़िबा करते पकड़ा जाए तो इसे 2,000 दिरहम जुर्माना होता है और इसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाता है। सऊदी अरब को इंतज़ामी लिहाज से 13 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सऊदी अरब के वली अहद ने 500 अरब डॉलर की न्यूम नामी मंसूबे का ऐलान किया है, जिसमें नया शहर और कारोबारी जोन तामीर किए जाएंगे, जो मुल्क के शमाल मगरबी इलाके में 26,500 मरबा किलोमीटर पर मुहित होगा। ये बहिरा अहमर के साहिल और उकाबा खलीज पर एक पुरकशिश मंजर होगा, जो कि अफ्रीका और यूरोप से इन लोगों को आपस में जोड़ेगा। बुरीदा अल-कासम दुनिया भर में खजूरों की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज़ है और बुरीदा में खजूरों की सालाना मंडी भी लगती है, जहां पूरी दुनिया से खासकर अरब और खलीज ममालिक के लोग अपनी साल भर की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से खजूरें ले जाते हैं। आपको कोई ऐसा सऊदी नहीं मिलेगा जिसकी जेब में मसवाक और गाड़ी में कुरान और मसल्ला और घर में खजूर और जैतून ना मिले। सऊदीया की मशहूर फास्ट फूड चेन अलबेक है, जिसका हर कोई दीवाना है, जहां जब देखो लाइनों में लगकर खाना मिलता है। इसकी कामयाबी का राज एक आलिम ने फाश किया। उसका मालिक हर डील में से 1 रियाल सदका देता है। जब वो फोत होने लगे तो अपने बेटों को सदके की वसीयत की। बेटों ने बाप से हटकर हर डील में 2 रियाल सदका देना शुरू कर दिया, जिससे अब लाखों गुरबा और मसाकीन लोगों का चूल्हा जलता है। अल्लाह ने इन्हें रंग लगा दिए और अब अलबेक का कारोबार अरब की दूसरी रियासतों तक वसी हो चुका है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जमजम पिया जाता है और खजूर खाई जाती है और इसके अलावा कहवा पिया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए वहाँ ये चीज़ें हज़म करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है। उनको माँ के यहाँ पाकिस्तान के पराठे और घर का सालन याद आता है। सऊदी अरब में कज़न मैरिज से पहले
टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में शादी नहीं की जाती। रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। मक्का मदीना में मुकामी आबादी कम है और उम्रा और हज के लिए आने वाले हाजियों की तादाद ज़्यादा है। आपको इस जगह पर दुनिया की हर नेमत मिलेगी। मक्का और मदीना के दस्तरखान दुनिया के सबसे बड़े दस्तरखान हैं। जद्दा दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हज और उम्रा के लोगों की क़यामगाह है। ताइफ मक्का के करीब पहाड़ी इलाका है जहाँ के अनार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मीठे हैं। तबूक उर्दन की सरहद के करीब वाक़या शमाल मगरबी शहर है। सऊदी अरब का मौसम मजमूई तौर पर गर्म होता है और खुश्क भी, और मौसम सरमा में बुलंद पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी पड़ जाती है, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर बर्फ़ नहीं होती। अब खाका वहाँ का जो इलाका है वो खासा ठंडा रहता है। सऊदी अरब में बारिशें बहुत कम होती हैं, ताहम कभी कभार मूसलाधार बारिशों से वादियों में सैलाब आ जाते हैं। दारुल हुकूमत रियाद में सालाना बारिश 100 मिलीमीटर है, यानी 4 इंच, जो जनवरी से मई के दरमियान होती है। सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 35 लाख के करीब है। सऊदी अरब आबादी के लिहाज से 41वें नंबर पर आता है, जो कि वहाँ के तकरीबन 80% सऊदी बशिंदे नस्ली अरब हैं। कुछ अफ्रीकी नस्ल से भी ताल्लुक़ रखते हैं। सऊदी अरब का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। कौमी फुटबॉल मुसलसल 4 मरतबा वर्ल्ड कप और 6 मरतबा एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने के बायस आलमी सतह पर जानी जाती हैं। सऊदी अरब 3 मरतबा एशियन चैम्पियन भी रह चुका है और 2 मरतबा फाइनल में शिकस्त खा चुका है। सऊदी अरब सकाफत की बुनियाद मज़हब इस्लाम है। इस्लाम में शराब नोशी और सुअर के गोश्त के इस्तेमाल की सख्ती से पाबंदी है। इस पर अमल दरामद किया जाता है। बुनी हुई भेड़, मुर्गी, शवारमा, बकरे, दुम्बे, ऊँट मशहूर खानों में शामिल हैं। सऊदी अरब की मारूफ लोक रस्म कौमी रक्स रुदा है। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रक्स कदीम बदवी रवायात का हिस्सा है। सऊदी अरब में 2 पहाड़ों को काटकर बनाया गया अजायब घर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर है। मदीना मुनव्वरा से 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मदाइने सालेनामी पहली सदी के इन आसार कदीमा में 131 पत्थरों और चट्टानों को तराश कर बनाए गए इस अजायब घर में मौजूद है। यूनेस्को ने इस मुकाम को सऊदी अरब का आलमी विरसा करार दे दिया है। सऊदी मुआशरा सख्ती से अपने कवानीन पर अमल करने वाला एक मुल्क है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।